तक आपका माइक्रोफोन बंद नहीं होगा बेटा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। म्यूट योर माइक्रोफोन एवरीवन। चार्जिंग वेस्ट करने का। सर सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। Just a minute, just a minute. Sheikh Romana teacher, please mute your microphone. Thank you. Okay, beta. Now we are starting. Now I am sharing the video here. Okay. Of exercise 9.1 मैं share कर रहा हूँ screen बेटा. Those who are having textbook, please open your textbook also. Okay. Can you hear my voice properly, everyone now? Yes, yes sir. sir. Yes, sir. Okay. So see exercise 9.1. In that we have discussed about the how to organize the data with the help of telemarks. That we have done. Now today we are going for the next one topic, that is a pictograph. It is starting from question number 4. It is very easy compared to this above one. Here information will be given with the help of pictograph, and just we have to watch it properly and we have to just answer the following questions. यही चीज करना है आपको. So let us understand first pictograph. कि pictograph होता क्या है? It means what? Here information or we can say data is provided with the help of some symbols. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रैक्टर का सिंबल दिया हुआ है. Okay? Let us see what is here. Yes, roll number 28. You read beta. रोल नंबर बेटा मैं जो इसका नाम बोला बेटा वो रीड करो, ठीक है? अगर वो नहीं रीड करेगी तो मैं दूसरे को चांस दूंगा, तब तक आप वेट करो. क्वेश्चन नंबर 3 4 3 same as above. Okay. यस Yes, so now we are starting new topic. Yes. क्वेश्चन नंबर 4 following pictograph shows the number of tractors in 5 villages. Okay, so here you can see picture of tractor is given. Clear? Here in a different 5 villages, village A से लेके village E, ये 5 नाम दिए हुए आप देख सकते हो. Okay, and on the right side of that number of tractors is here. So how many tractors are here in a village A, in a village B, ये सब दिया है. Now on the top right side you can see scale is given. इसको बोलते हैं scale. Okay, it means what? कि one symbol of tractor means one tractor you have to consider. ये सभी क्वेश्चन में सेम नहीं होता, ये बदलता रहता है. According to that we have to do. So here one tractor means symbol of one tractor means one tractor only you have to take. So it's very simple. ठीक है? अभी आगे देखेंगे यहाँ पे स्केल बदलती रहेगी. Let us see this. तो ये समझ में आ गया आपको? वेरी सिंपल थिंग, पेक्टोग्राफ समझ में आ गया. अब इसके क्वेश्चन आंसर हमें सॉल्व करने हैं. तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस, कंटिन्यू बेटा. Yes, sir. Or observe the pictograph and answer the following questions. यस, Question फर्स्ट 1. क्वेश्चन. Which village has the minimum number of tractors? Okay, so by seeing the pictograph, answer. Okay, which village has the D. minimum number of tractors? Yes. Which one? Village D. Village D. How many tractors are there? 3. Yes. Only 3 tractors are there. You can see. Yes. Okay. देख सकते हो यहाँ पे विलेज डी में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रैक्टर्स है और सबसे कम ट्रैक्टर वहां पे है. तो आवर आंसर इज विलेज डी. क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कंटिन्यू. Which village has the maximum number of tractors?
अब कौन सी यूनिट Village में C. सबसे ज्यादा? Village C. विलेज ये Village C. Village C. विलेज ओके, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर वहां Village पे C. देख सकते हो। टोटल 8 ट्रैक्टर्स आर हियर। ओके, Yes, sir. very simple thing is here. Okay, next girl, Kapasi Afrin, you read the next two question. Kapasi Afrin. Yes. Okay, next question 3 and 4 you read beta. Be ready with your textbook. टेक्स्ट बुक के साथ रेडी रहो, पेज निकाल के। इट इज ऑन पेज नंबर 193. Can I, sir? $16. Kapasi I, Afrin sir? Zehra, are you not ready beta? Yes. Okay, then start. How many more tractors Village C has as compared to Village B? Okay. How many more tractors विलेज सी है कंपेयर टू विलेज सी और बी का कंपैरिजन करो। कितने ज्यादा ट्रैक्टर है सी में? 3 ट्रैक्टर्स आर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कंटिन्यू। लास्ट क्वेश्चन। यस कपास इफ अफिन ज़ेरा कंटिन्यू बेटा। Yes. What is the total number of tractors in all the 5 villages? यस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? 28. वेरी गुड। हाँ, सबने काउंट करके रखे थे। हाँ, वेरी गुड। टोटल 28 ट्रैक्टर्स आर हियर। तो ये था पिक्टोग्राफ। ऐसा होता है क्वेश्चन। लो, कितना आसान था, सिंपल। ओके, Yes. now we are moving ahead for the next question. Okay, now in the next question, question number 5, let us see. Sir, your voice is Lakhani Sir, Sakina, your voice is double. Sir, can I read? Sakina. Sir, can I say? roll number 34, Lakhani Sakina Muhammad Taqi. Yes. Yes, sir. Can I read? Yes, Lakhani Lakhani Sakina, come on. Okay. Question 5. The number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted by pictograph. Yes. So here you can see information of number of students in a particular class is given. It's a school which is having co-educational middle school. मतलब यहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों का साथ में पढ़ाई हो रही है, ऐसी स्कूल है। वहां पे गर्ल्स कितनी है हर क्लास में वो बताया है। तो यू कैन सी इन द फर्स्ट क्लास, देख सकते हो यहाँ पे नीचे। ओके, डिफरेंट क्लास इज गिवन हियर, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इज गिवन, फेसेस आर गिवन हियर। नाउ यू सी ऑन द राइट साइड ऑफ द टॉप राइट साइड में आप देखो, 1 फेज इज इक्वल टू 4 गर्ल्स लेना है। यहाँ पे स्केल बदल गई, देखा आपने? 1 phase is not 1 girls but 4 girls you have to consider. It means you have to multiply by 4. Whatever the phases are given in a particular class, you have to multiply it by 4. For example, in the first class, count how many phases are here? 24. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6. तो 6 को 4 टाइम्स करेंगे ना, 6 4 जा 20। 24. It means in a first, हाँ, it means in a first class 24 girls are here. समझ में आ रही बात? Same way for the next one you see, in the second class 1, 2, 3, 4. 4 phases are complete and 1 is a incomplete. And half. Last one जो है वो half है। तो पहले हम 4 phases है, 4 को करेंगे, 4 4 जार 16. 16. And what about the half? 18. वो Yeah, half means we have to consider 2 girls. Clear? Half means we have to consider 2 girls. So 16 plus 2, answer is 18. It means 18 girls students are here in a second class. समझ में आ गया पिक्टोग्राफ सबको? Yes. Okay.
चलो नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. अब देखो नीचे. यस कंटिन्यू बेटा. Okay, sir. Observe this pictograph and answer the following question. A. Which class has the minimum number of girl students? Okay, stop. So Class first 8. question here. Which class has the Class minimum 8. number Class of 8. girl students? Class 8. Yes. Can anybody tell me how many students girls? 6. Six. Correct. One page means four and half means two. So four plus two, six. 6. Okay. Yes. So answer is eight class. ठीक है? This is the answer. चलो next question. Question number B की तरफ बढ़ते हैं. Okay. Now next girl here is a लाखानी तस्किन फातिमा. You read बेटा. सर किसी का माइक चालू है तो आप शाबाश कर यस. बाकी सब माइक्रोफोन बंद कर देना. चलो ठीक है. यस. लाखानी तस्किन फातिमा. आर यू रेडी बेटा? चलो नेक्स्ट गर्ल लाखानी जैनब. यस सर. Absent. ओके स्टार्ट. यस सर. સર તમારો વોઇસ ક્રેક થાય. Is the number of girls in class 4 less than the number in class 5? यस इट्स अ 6. क्लास 6 और 5 की बात करना है. इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5th, यानी कि 5th की क्लास से 6th क्लास में जो गर्ल्स है वो कम है. No. ये पूछा है. नहीं है ना, ज्यादा है ना. ज्यादा है. यस. सर 6 में 5 में देखो समझ 6 में लिया. ज्यादा है ना. हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया. सर मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया. सर मुझे आधा है तो आधे को कैसे मल्टीप्लाई करना है? एक्सप्लेन करता हूँ. बंद कर दो माइक्रोफोन. ठीक है. Our question was, is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5? यानी 6th क्लास की गर्ल्स जो है वो लेस है 5th से. तो देख के पता चलेगा भाई नहीं है. तो हमारा आंसर हो गया नो. ठीक है. इतना ही बोलना है. अगर काम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5th में कितने हैं. 1 फेज इज इक्वल टू 4. यहाँ पे 2 फेज कंप्लीट है, यानी 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 2 जार 8. ये हाफ है, उसको कितना काउंट करेंगे? 2 गर्ल्स लेंगे ना. 2. 10 गर्ल्स हुई यहाँ पे. Yes. Yes. ओके. नाउ इन द 6th क्लास यू सी 4 पेजेस आर देयर. तो 4 4 जार 16. No. 16. 16. देखा आपने 6th की क्लास में कम नहीं है ना. 5th से कम है नहीं है. आंसर इज नो. बस यही आंसर आएगा. सर ऐसा पूछ रही है कि जो हाफ गर्ल है ना उसको कैसे मल्टीप्लाई 2 करना लेना है? है. हाँ बेटा वही तो एक्सप्लेन किया मैंने. 2 लेना है. 4 का आधा कितना होता है? 2. पूरा फेज यदि 4 गर्ल्स तो आधा फेज होगा उसका कितना हो जाएगा? 4 गर्ल्स का आधा मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे क्या आएगा? 2 आएगा ना बेटा. 2. क्लियर. चलो ओके बेटा कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. How many girls are there in class 6? 7. क्लास Sorry. 7. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? तो देखो 7 में कितनी गर्ल्स है, कितने फेज है 7th में? 3 phases are here. 1 2 3. मतलब 3 को 4 टाइम्स करो. 3 4 जा 12 girls are there in 7th class. Understood everyone? Yes. Yes. सबको समझ में आ गया? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Can I read, sir? Roll number 50. Can I read Halal? मिनसारिया रोजमीन. Yes, sir. ओके बेटा रीड क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. The sale of electric bulbs on different days of a week is shown below. Okay. So here you can see pictograph of a selling of electric bulb is given on a different days from Monday to Sunday.
मंडे से लेकर संडे तक यानी पूरे वीक में इसमें बल्ब। 2 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हो मंडे से लेकर संडे तक का दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। नाउ ऑन द टॉप राइट साइड स्केल इज गिवन, 1 bulb is equal to 2 bulbs we have to consider, क्लियर। तो जितना भी है हर दिन में उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। प्लीज पुट योर माइक्रोफोन म्यूट। बेटा माइक्रोफोन बंद कर दो। Okay, so here is a Monday to Sunday it is given. Now in a Monday you see total how many bulbs are here in a Monday? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 14. So 6 twos are 12. 14 नहीं आएगा बेटा, 12 आएगा। तो on a Monday 12 bulbs were solved. आया समझ में? मंडे को 12 बल्ब सॉल्व किया है एक शॉप ने, ठीक है। इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हाटएवर। ओके, यहाँ पे कोई आधा बल्ब कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब है आप 2 बल्ब कंसिडर करना है सभी को यहाँ पे। So this is a pictograph given. Now we are moving for the question answer. Let us see. Observe the pictograph and answer the following Yes, questions. first one. Question A. How many bulbs were sold on Friday? Okay, so on Friday, how many bulbs were sold on Friday? 7. 7 को 2 टाइम्स करना है ना, 7 2 जा 14. 14 bulbs were sold, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट गर्ल नकवी सिन्हा। Sir, can I? On which day were the maximum number of bulbs sold? Sunday। संडे सबसे ज्यादा सोल्ड हुए। कितने सोल्ड हुए? Sunday. 18 bulbs. 18. 18। Yes। 18. Any query? Yes, 18 bulbs. correct, 18 bulbs were sold, ठीक है। Can I read? हमें सिर्फ दिन बताना है, संडे। Can I read? नेक्स्ट कंटिन्यू बेटा। बेटा डोंट स्पीक इन बिटवीन, तो बोल रहा हूँ यहाँ से, आप क्यों बीच में बोलते हो बेटा? यस, नेक्स्ट गर्ल कंटिन्यू बेटा। On which of the days same number of bulbs were sold? Yes, on which day same number of bulbs were sold? Wednesday, Saturday. Yes, Wednesday and Saturday. Wednesday and Saturday. यस, तो वो आंसर आएगा यहाँ पे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट गर्ल यर नूरानी सुकून फातिमा, यू रीड बेटा क्वेश्चन नंबर डी एंड ई। D. On which of the days minimum number of bulbs were sold? यस, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सबसे। Wednesday and Wednesday and Saturday. यस, वंस अगेन सेम आंसर, Saturday. वही 2 दिन आएंगे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ओनली यस 8 bulbs were sold, करेक्ट। Yes. यस, चलो कंटिन्यू बेटा, लास्ट क्वेश्चन। E. If one big carton can hold 9 bulbs, how many cartons were needed in the given week? Okay, now nobody will give answer. If you know, stop. Okay. Now see what is the question I am explaining. This question you have to solve and you have to give me the answer in chat box. क्योंकि इसमें calculation आ रहा है. See what you have to do. I am once again explaining. You have to find its answer in your rough book and you have to give the answer in chat box. Okay. Question is here. If one big cartoon can hold 9 bulbs, अगर एक बड़ा सा कार्टून है उसमें 9 bulbs आएंगे, ठीक है। How many cartoons were needed in the given week? ये पूरे वीक के जो बल्ब है उसको हम अगर कार्टून बनाएंगे उसके, तो फिर कितने कार्टून्स बनेंगे वो हमें बताना है। So for that what we have to do first? Anybody? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले Multiply. divide. Total bulb हमको yes, first of all you should know the total number of bulbs. Good beta, very good.
जब हमें पता चलेगा कितने बल्ब्स है, फिर हम उसको करेंगे ना, उसके हिसाब से कार्टून बनाएंगे। कार्टून कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे लिखा है वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स। इन वन कार्टून 9 बल्ब्स हम रखेंगे। तो टोटल हम जब करेंगे तो जो आंसर मिलेगा, ठीक है, that we have to divide by 9, so we will get the number of cartoons। समझ में आया? 9 multiply 7। पहले आपको सब कितने बल्ब्स सॉल्व हुए मंडे से लेके संडे तक, that you have to first find the total। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टोटल। 43 Nice. sir, What is the total 43 number of bulb that you first find out?86 43 आया टोटल, ठीक है। तो 43 मतलब 43 को 2 जार करना पड़ेगा ना, तो 1 bulb is equal to 2, तो 43 means 43 multiplied by 2, तो what will come? Yes, 86, करेक्ट। ये 86 टोटल मिला है, अभी आंसर नहीं मिला है। हाँ, 86 है टोटल। यस, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 86 डिवाइड बाय 9 करना है। तो चलो सब करो, और क्या आंसर आता है मुझे बताओ। Give your answer in chat box, okay? सर यस बेटा। ये 91 तो आपने अभी तक कितना करा है? क्वेश्चंस वो हमको टेक्स्ट बुक में लिखना है या फैन नोट में? अभी मैं बताता हूँ क्या करने का है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सर आप इसकी पीडीएफ सेंड करोगे? सर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मैं बताता हूँ बेटा अभी क्या करने का है, वही मैं बोलूंगा, ओके? सर कौन सा राइट आंसर है? चलो सबने दे दिया आंसर, और इज एनीबॉडी ट्राइंग? Okay, all most of have given the answer 10. Huh? Okay. सबने दे दिया आंसर, और इज एनीबॉडी ट्राइंग? सर सबने आंसर दे दिया। टीचर सर मैं बाकी हूँ। ओके, कम ऑन ट्राई। सर 10 सर किसका राइट आंसर है? Okay, so correct answer is 10. Okay, those who have given the answer 10, their answer is correct. Now I am explaining why answer is 10. Okay? तो जिसको कुछ डाउट है वो समझ लो कि क्यों 10 आएगा। Now as you say, total is a 86, correct? टोटल 86 आया था, राइट? तो 86 को डिवाइड बाय 9, we have to do divide by 9 because in one cartoon we have to put 9 bulbs। टोटल 86 है, तो कितने कार्टून फॉर्म होंगे? तो डिवाइड बाय 9 करेंगे। 9 9 जा 81, 6 minus 1 is 5, 8 minus 8 0। तो ये हुआ 9 कार्टून, ठीक है। फिर अगेन यू से हियर लास्ट वन जो है 5 बल्ब बचे हैं, तो 5 बल्ब का भी एक कार्टून अलग तो बनाना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो उसका भी एक कार्टून फॉर्म होगा ना। तो 9 + 1
it becomes 10. Clear? So that is why 10 cartoons are required to put all the bulbs in a cartoon. Clear, everyone? Yes. Yes. Ah, okay. So this is about the pictograph. यही चीज है लास्ट क्वेश्चन में भी। बहुत इजी था। इसी सर कैन आई रीड? सर कैन बस आई वो सिर्फ रीड? मैं आपको और Lisa Fatima Naqvi. Can I read? Sir can I read? क्लियर बेटा, उसमें आंसर क्या आएगा? Sir, can I read? फोन बंद रखो बेटा, Sir can I read? Naqvi माइक्रोफोन Lisa सब Fatima. नोबडी विल रीड बेटा, कोई रीड नहीं करेगा, यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। तो लास्ट आंसर क्या आया? 10 कार्टून। कितने कार्टून्स? 10 कार्टून। दिस इज अवर आंसर। ओके, now what I am saying, the last one is the seventh one is same, वो इसी तरह ही है। ओके, you have to try, but I am explaining, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें क्या नया है। Here you Sir say, can I read? बेटा रीड नहीं करना है बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, so here what you have to take, in the scale it is given, देख सकते हो ये जो है 1 basket is equal to 100 food basket है। whatever the number of basket is here, that you have to multiply by 100। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे है रहीम, आफ्टर दैट 4 basket are given, तो 4 times 100 करोगे, it means how many? 400. 400। क्लियर एवरीवन? ये सब आपको ट्राई करना है, दिस इज इन योर होमवर्क, सब लोग पहले ट्राई करोगे ये। टुडे आई विल सेंड द पीडीएफ, मैं पीडीएफ को भेजूंगा आज, पूरी एक्सरसाइज की पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ भेजूंगा, ठीक है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर पूछा था सर क्वेश्चन लिखने का है, नहीं तो समझ लो यहाँ पे, हियर क्वेश्चंस आर वेरी बिग, यू कैन किसी सी। के भी क्वेश्चन नहीं लिखने? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन यू कैन सी इज वेरी बिग, ड्राइंग भी करना होता है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है आपसे, तो इसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है फेयरबुक में। यू हैव टू जस्ट राइट द आंसर। बेटा समझ लो पहले बेटा, फिर बाद में क्वेश्चन करो बेटा, पहले समझ लो सर जो बोल रहे हैं, ओके, फिर समझ में ना आए तो बाद में क्वेश्चन करो। सो हियर एवरी केस यू हैव टू जस्ट राइट द आंसर, ओके, नो नीड टू राइट द क्वेश्चन। जो फिगर है ना ड्राइंग करने का, वो आपको ड्राइंग करके वो क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट ओनली आंसर। ओके, so today I will send the PDF of this 9.1 complete. Have any question? Any doubt? Any question? No, sir. No, sir. No doubt. सर मैं अपने की तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 पीडीएफ में से लिख लूं। मैंने बोला ना बेटा, मैं आज कंप्लीट PDF सेंड करूंगा। Okay, sir. ओके, Okay, sir. यस बेटा, any question? Then you can leave. Not doubt. Sir, बाय बाय सर। Bye bye, sir. Thank you. बाय बाय सर। बाय बाय सर। हैव अ नाइस। बाय बाय। What बेटा what? 100 का हाफ 50 होगा ना? Yes, 100 का 50। हाँ। Okay, any question now? No, sir. अभी क्लास के बाद में भेज रहा हूँ PDF, ओके, लाइन पर बने रहना अभी मैं। ओके, थैंक यू एंड खुदा हाफिज, यू कैन लीव नाउ। बाय सर। यस, Bye bye, sir. बाय बेटा, Bye bye, sir. Khuda Hafiz. बाय बाय। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय Bye, sir. बाय बेटा।